So hello friends, again welcome to PCS बाबा पावर्ड बाय लोक सेवा अकेडमी चैनल। आप सभी का स्वागत है PCS बाबा चैनल पर। होप यू आर सेफ एंड स्टेइंग एट होम। सो आई थिंक and I assume that you have attempted the day 1 net practice questions initiative of target 2020 for UPPCS net practice 50 days plan. So there is a net 50 days NP 50 days plan for UPPCS 2020. So this initiative was started by PCS Baba powered by Lok Seva Academy, and you can get this initiative on pcsbaba.com. Our website is pcsbaba.com, where you can get this PDF and you can attempt the questions and also the solutions and YouTube discussions and all other relevant contents also you can get on that website. Okay friends, so today we are going to discuss the solution of day 1. This is first day solution discussion. So before that I wanted to just brief about this initiative, because many people may not be knowing about this initiative. So just I wanted to brief, just a brief introduction and where you can get. So briefly I'm just discussing that our website is pcsbaba.com. There you can go and you can also join our Telegram channel. The link is given on website, or many groups or YouTube channel, it will be provided. And also you can go join WhatsApp group where you will get these PDFs and you can attempt those questions. And also download please fact sheet, answer sheet for every day 50 days, and take a printout of 50 copies and just maintain a record of 50 days. I can guarantee you that at the end of 50 days you will have a rich content and rich experience about attempting how to attempt questions. So believe me, it's a 50-day journey, but please do it seriously and you enjoy the fruit of this whole journey. Okay friends, so दोस्तों, so this is our website pcsbaba.com. pcsbaba.com हमारी वेबसाइट है। इस पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। इस पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जाना है और इसमें टारगेट PCS 2020 टैब पर एक क्लिक करना है, ठीक है। So you have to click on target PCS 2020. Also many scrolling message is also there also you can click and you can go to that page. Okay, so yes, target 2020, if you click then this page will open where you can read about this initiative in detail. And just briefly, because I've already made a video about the whole discussion about the whole initiative. So there you can say there is a 50 days plan, and each day you will be getting 20 questions. Just download all those things, all the details are there. And yes, just see here you can download the answer sheet for SWOT analysis. I already told you what is SWOT analysis. Just go through my previous video. So there you can get what is the explanation of SWOT analysis and how you can maintain your daily performance, and just download this answer sheet. Okay, and also here you can see a day 1 and day 2 and solution, YouTube discussion, all the links are there. There you can download all this, and please comment your scores, please comment your scores, and any doubtful questions are there or any wrong answer is there. Maybe the possibility maybe that I'm just making some wrong answer or some wrong facts. Just please rectify and please do comment if you find any error. Please, you are most welcome to find out any mistake or intentionally or unintentionally. Please find out, please point out seriously. Okay friends, so you can also comment here, and please register on website before comment. So please do register, you can get all the updates and all the other benefits also. Okay friends, okay, so this is all about initiative. Just quickly I just refreshed it, what is the initiative, how you can access, because accessibility is very important. So please do follow on pcsbaba.com, also on YouTube channel, also on this Telegram and WhatsApp group. So there are so many platforms I am sharing this whole video and this whole initiative. Okay friends, so okay, so we will continue with our day 1 solution discussion. So here we are going to discuss the first day solution. ठीक है दोस्तों, I think you are satisfied. If you any suggestion, please do suggest in comment box. Also comment on YouTube, or please do your comment, give your comment on website or in WhatsApp group. Okay friends, so we will move forward to discuss the solution
एंड क्वेश्चंस ऑफ डे 1. सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट डे, इट इज़ रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आर देयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is actually just wanted to make one small information. Just there will be some 5 or 10 based on the content subject wise, like initially 5 there will be initially 5 day we will be covering ecology and environment and current affairs. So 5 day in ecology plus current affairs, like that we have divided, and we will be interchanging all the subjects, covering all the subjects: polity, history, geography, science and technology, everything economy we will be covering. Okay friends, so first day it is related with the ecology and current affairs. Okay, now proceeding further, first question we will discussing. What is the first question? Just which of the following is not correct about the ecosystem? I hope that you have studied about this ecosystem. Now you have to find out which is not correct about the ecosystem. So their options are: compromise both abiotic and biotic components. It has productivity. Okay, it is a closed system. It is a natural resource system. So here you can say first option is correct, because the ecosystem is the study of is a collective form of biotic and abiotic components. So first is very correct, and it has productivity. Definitely. Ecosystem, every ecosystem has a productivity, like a marine ecosystem, land ecosystem, grass ecosystem. Like marine ecosystem has a great productivity, then land ecosystem has a larger productivity, like that tropical ecosystem has the most productivity, like that. So many things are there you can cover. You should know all these facts. Okay, the most productive ecosystem is tropical ecosystem, tropical rainforest. They are the most productive ecosystem on the earth. Okay, so that's the factual thing. So here you have to find out which is not correct about ecosystem. So here option will be C. It is a closed system. It is wrong. Ecosystem is an open system. It is not closed. Closed means there is no inflow or outflow. Whatever energy within it is being consumed. There is no energy going out or nothing like that. But no, as you know that in any ecosystem, like if you take example of any pond ecosystem, there will be some inflow, like there will be some nutrition, and then grasses will be there, then fishes will be there, like that we will eat. Then if fishes are being eaten by human, then decomposition and other things, so many things are there. So there is a inflow of some nutrition and outflow of some nutrition and like that energy. So it is not a closed system. Like in explanation you say that the ecosystem is an open system with a continuous but variable influx, loss of materials and energy. There is a loss of, like you must have studied that what is from each level of tropical there is only 10% of energy is transmitted. Tropic 1 from tropic 1 to tropic 3, like that only 10% energy is being transmitted. Okay, we will see in detail. So first question is answer will be C. Now second question comes. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. बनावटी इकोसिस्टम कौन सा है? बनावटी पारिस्थितिकी सिस्टम कौन सा है? बनावटी मतलब जिसे ह्यूमन ने बनाया है, जो नेचुरली नहीं पाया जाता है. तो इसमें ऑप्शन है राइस फील्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लेक. सो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राइस फील्ड. राइस फील्ड मतलब जो हमारे धान के खेत होते हैं. धान के खेत क्या करता है, आदमी खुद धान लगाता है, वो नेचुरली नहीं होते हैं. बाकी फॉरेस्ट नेचुरली होते हैं, ग्रासलैंड भी होते हैं, नेचुरली होते हैं, और लेक जो तालाब होते हैं वो भी, झील होती हैं वो भी नेचुरली होती हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फॉर राइस फील्ड्स है. आर्टिफिशियल सिस्टम मीट्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ नेचुरल सिस्टम बट इट इज़ मेड एंड कंट्रोल्ड बाई ह्यूमन्स. Means it meets all the criteria of natural ecosystem but it is made and controlled by humans. That is the only difference. That's why it is called as artificial. Okay, now moving forward, question number 3. Question number 3 is the number of organisms that can be supported by environment in a given area is known as. The number of organisms that can be supported by environment in a given area is known as. Options are population,
मतलब इसका क्वेश्चन क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इन्वायरमेंट में जो मैक्सिमम उसकी ऑर्गेनिज्म नंबर है, जो भी जीव जंतुओं को सपोर्ट करने की क्षमता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्षमता है, जो एक किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग बोलते हैं भारक क्षमता, वहन क्षमता। सो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स और बायोमास ये भी नहीं बोलते। सो ऑप्शन इसका बी है। हियर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ species that environment can sustain indefinitely given the food, habitat, water and other necessities available in the environment. It means the maximum capacity which can be supported by any ecosystem or environment in broad sense, with in terms of food, habitat, water and other things carrying capacity. Okay, so answer is B. Now moving forward, fourth question. Which of the following is the correct order of biological organization ranking from organism? Okay, organisms to biosphere. Which of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन देन इसका मतलब आपको छोटे से लेके एक जो छोटे जीव से लेके हमें इकोसिस्टम बायोस्फीयर तक जाना है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, मतलब छोटे से जीव से मिलके क्या बनता है, फिर जीव से मिलके क्या बनता है, फिर छोटे जो कई जीव जो इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, लाइक दैट आपको सही क्रम पहचानना है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? लाइक फर्स्ट ऑप्शन यू कैन से पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम, देन कम्युनिटी, देन लैंडस्केप. नो. Then the second option is landscape, community, ecosystem, population. Here one thing I want to just make clear that these things first you should have studied. First, if you are attempting first time, you will be finding difficult. But these are the questions which are very much probable in the examinations, and they have come already in examination. Most of the questions which I have kept in the day one, they have come in examination, and there is the most chances that they will be repeating in coming examinations. So please, and don't just solve this question, try to understand the terms, try to understand the options, what is the meaning, what is the population means, what is system, then community, landscape. Don't go just for what is the answer, try to understand the whole question and answer, so that you can use this in some other question. If any new question comes, you can apply that logic, because attempting test is not useful if you are not able to, because the same questions may not be coming in examination, but based on this test and practices you can apply this logic and you can find the correct answer in actual examination. That is the logic behind test series. It's not like that I am just making you, because these are the questions already available. Why you should attempt this question again and again? You can study from those. But here important thing is that you have to apply and try to understand logic behind question and answer completely. Okay friends, so here like इसका सही आंसर क्या है? सी यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या से मिलके कम्युनिटी बनती है, एक समुदाय बनता है, फिर समुदाय से मिलके इकोसिस्टम बनता है, फिर वहाँ से लैंडस्केप बनता है। ये इसका सही ऑर्डर है। मतलब सबसे छोटा पॉपुलेशन होता है, फिर उसके अंदर क्या कम्युनिटी आता है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, और उससे मिलके पूरा एक लैंडस्केप बनता है। मतलब जो सबसे बड़ा वो है बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये है। पॉपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। पॉपुलेशन है कि नंबर ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ सेम कास्ट इज कॉल्ड देयर पॉपुलेशन। लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन कास्ट है कि एक पूरा रेस है, उसका जो पॉपुलेशन है वो जैसे क्या कितना है, लगभग 7 बिलियन है पूरे वर्ल्ड में, लगभग 7 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा। ठीक है, देन हियर यू कैन से अदर explanation also. Community, the population of 2 or more 2 ethnic groups create a community, like human, then animals, they together form a community. Okay, then ecosystem like you take example of ecosystem of grass. There are so many, there are ants are there, then big animals are there, there so decomposers are there, they together form ecosystem. Okay, biotic, abiotic components, they form ecosystem. These definitions you should read first from concerned books, some fundamental books, so that you can understand these terms better.
don't just attempt this question. Okay friends, for optimum use of this initiative, landscape, one or more ecosystem found in fixed terrain, they are known as landscape. So like that you just attempt and you have to understand the definition of these terms. Okay friends, now पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन. बायोटिक सक्सेशन कैसे होता है कि जैसे किसी स्थान पे वहाँ पे बायोटिक जो जैविक वो है वो सक्सेशन कैसे होता है. जैविक सक्सेशन मतलब कि वहाँ पर कोई जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता है, कैसे कैसे वहाँ जीव की उत्पत्ति होती है. जैसे कि हमारे अर्थ पे कैसे हम लोग की उत्पत्ति हुई, ये इस तरह का बायोटिक सक्सेशन है. ठीक है, तो इसका क्या है करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो यहाँ पे ये टर्म्स हैं, लाइक ऑप्शन में आप देख सकते हैं न्यूडेशन, देन माइग्रेशन, देन एसएससीज, देन रिएक्शन, देन स्टेबलाइजेशन. ये आपको पढ़ना पड़ेगा. बायोटिक सक्सेशन और सक्सेशन की थ्योरीज हैं, जहाँ से आपको कि न्यूडेशन का क्या मतलब है कि जब किसी स्थान पे कोई भी वो नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, पूरी तरह से एकदम न्यूड है. न्यूड मतलब कि जैसे समझते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं पाया जा रहा है. देयर इज़ नो एनी वेजिटेशन, देयर इज़ नो एनी organism, there is no any biotic component. Then nudation है. Then migration. Migration means some other plants, some other places, some species will come. Like here, A is already an ecosystem where some biotic components are there, and B is in nudation condition. Nude है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ species, कुछ biotic components, and they will migrate to this place if conditions are viable. Okay. ठीक है, सो लाइक दैट these टर्म्स आर देयर. देन ECCs, देन रिएक्शन, देन स्टेबलाइजेशन. सो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा. ये आपको देखना पड़ेगा. इसका आंसर क्या, न्यूडेशन, माइग्रेशन, ECCs, रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइज हो जाता है. देन दैट इकोसिस्टम विल बी स्टेबलाइज, तो वो स्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है, तो छठा क्वेश्चन क्या है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स. यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन. सो इसका आंसर क्या है, सी है. डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया. बायोडाइवर्सिटी मीन्स ये है कि डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया. बायो मतलब डाइवर्सिटी. बायो मतलब क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ. सो इसका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल डू इट फास्टली बिकॉज इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज द साइज ऑफ वीडियो विल बिकम वेरी लार्ज. ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट खेलूँगा. तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड प्रेजेंट इकोसिस्टम में डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी. सातवां क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज. जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी बायोडाइवर्सिटी का, जैव सिस्टम का, उसको क्या है इसमें से. तो इसमें ऑप्शन क्या है, फूड, ड्रग, देन इंडस्ट्रियल यूज, देन मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. सो इसका आंसर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. तो मेंटेनेंस जो इकोसिस्टम का है वो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसी भी इकोसिस्टम का सस्टेन करने के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. देन आठवां क्वेश्चन. आठवां क्वेश्चन यहाँ पे है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू. जो बायोडाइवर्सिटी का नाश होता है, जो उसका अस्तित्व का नष्ट होता है, वो किस कारण से होता है. तो इसमें ऑप्शन क्या है, द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके चारों कारण हैं, डी, ऑल ऑफ द अबव. कि नेचुरल हैबिटेट भी ऑर्गेनिज्म का अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो वो उसके कारण भी डिस्ट्रक्शन होता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी का वो हो रहा है, नष्ट हो रही है. और फॉरेस्ट को हटाने से भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रही है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8th का डी. ओके फ्रेंड्स, नाउ 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी. इन सिटू, सो हियर ब्रीफली आई जस्ट वांटेड टू टेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ conservation strategies. One is in situ and second is ex situ. Okay, in situ means, what is the meaning of that, कि the conservation should be at place where it is naturally found all the like national parks, where suppose tiger is found in forest, and if we are consuming the whole forest or whole area as a national park or biosphere reserve, okay, or tiger reserve, then that is called as in situ. In मतलब कि same place, internal,
like for remembering you can say in situ means internal means where it is there. Ex situ means so like tiger reserves, biosphere reserves, and this all the lakes and all these things are in situ conservation. Ex situ means external, like our zoo is external conservation methodology. Like seed banks are there where we preserve the important seeds, the DNA banks are there. DNA banks are also as an external ex situ conservation. Okay, so these type of there are two strategies. So here you have to find out which of the following is not example of in situ conservation. So I already told you biosphere reserve is ex situ. Then botanical garden it is in ex situ. National park is also ex situ, and sacred groves are there. जो गुफाएं होती हैं सैक्रेड, जो छुपी गुफाएं होती हैं वो भी ex situ होती हैं. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा कि इन situ का एग्जाम्पल जो नहीं हुआ है बोटेनिकल गार्डन. वहाँ पर क्या है कि हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ले आके स्पेसीज़ को जो इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट होने वाली हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नहीं है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सिटू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, सीड बैंक्स है, बोटेनिकल गार्डन्स है, हॉर्टिकल्चर, रिक्रिएशनल गार्डन्स हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड नेचुरल रिजर्व्स है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, सो प्लीज स्टडी इट इन वेल लेटर ऑन. ओके, सो 10वां क्वेश्चन क्या है, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, मेन रीजन क्या है, डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी घटने का कारण क्या है, बायोडाइवर्सिटी घटने का मेन मुख्य कारण क्या है. तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, हैबिटेट पोल्यूशन, जो प्रदूषण हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़ के हैं, जो बाहर की स्पीसीज़ को, जो बाहरी स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो प्राकृतिक आवासीय है, नष्टकरण है, डिस्ट्रक्शन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इससे अरेंजमेंट में इशू है. सो आप देख सकते हैं ये ABCD है लाइक दैट. सो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जो हम जीव जंतुओं या पौधों को नेचुरल जो उनका प्राकृतिक हैबिटेट है उसको हम जो नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी. सो हमें उनके नेचुरल प्राकृतिक आवास को क्षति नहीं पहुंचाना है. लाइक वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, लाइक दैट, सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व दोज नेचुरल एरियाज. ओके फाइन फ्रेंड्स. सो 11th question is, which layer of atmosphere is called as ozonosphere? इसका ऑप्शन क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड देन ऑप्शन डी है एक्सोस्फीयर. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोनोस्फीयर, ओजोन है ना हमारे, एक ओजोन का एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि हमें यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है. जो ओजोन लेयर डिप्लीशन भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसका हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे. सो यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि ओजोनोस्फीयर किस लेयर में पाया जाता है. तो इसका आंसर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड लेयर पे. फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है. ओके, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा. इसमें 5 लेयर होती है, फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर, लाइक दैट 4-5 layers are there, and you can also study how many kilometers the range is there. Okay, now 12th question is that here you have to match the following: earth spheres, then characteristics, hydrosphere, lithosphere, biosphere, ionosphere, and here characteristics दिया हुआ है. तो इसका क्या, it lies above 50 kilometers, the earth crust and earth waters and zone हाइड्रोस्फीयर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाइड्रोस्फीयर को जल से जुड़ा होता है, लिथोस्फीयर जो है वो उससे जुड़ा होता है, जो मिट्टी का क्रस्ट होता है उसे. बायोस्फीयर क्या है कि पूरा मिला के होता है जो भी है,
ठीक है। आइनोस्फीयर क्या है, जो हमारे 50 विद थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा आप, यहाँ पे सी है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। देन 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोटन। व्हाट इज इकोटन? इकोटन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन bioecology and environment. Okay, so here you can say options are it denotes a mosaic boundaries or interdistinct zone between two more homogeneous vegetation. Okay, vegetation units. B is the term was applied for as a product of soil formation. It is formed by इसका ऑप्शन ए है। इकोटन एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या है, ये दो बाउंड्रीज के तेज में होता है। इट इज़ अ मोजाइक बाउंड्रीज आर इंटरडिस्टिंग जोन बिटवीन टू आर, लाइक दो इकोसिस्टम का बीच का जो एरिया होता है उसको इकोटन बोलते हैं। जहाँ पर दो इंटरसेक्शन होता है, दो इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं इकोटन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अच्छे से और देख लीजिएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इकोसिस्टम में, ठीक है दोस्तों। सो इकोटन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, नो इंडिया प्रोग्राम। नाउ करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम कर देखेंगे कुछ यहाँ पे। तो 14वां क्वेश्चन है, नो इंडिया प्रोग्राम भारत जानिए प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। सो नो इंडिया प्रोग्राम में एक लॉन्च किया गया है, इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री फॉर एंगेजिंग बिटवीन 18 to 30 ईयर्स इन कि जो बाहर के लोग हैं, जो NRIs हैं, उनको क्या है भारत के बारे में जानने के लिए एक मौका दिया जाएगा और सिलेक्ट किया जाएगा। देयर अवेयरनेस अबाउट इंडिया, टू इन्हेंस देयर अवेयरनेस अबाउट इंडिया, इस कल्चर, हेरिटेज, देम वेयर बैरियर्स कंट्री। ओके, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ 15th क्वेश्चन, ऑन द 30th दिसंबर 2019 द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हमारे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 लॉन्च किया, रिलीज़ किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप्स इन फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, किस राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन नहीं है। इंक्रीज किस में सबसे ज़्यादा हुआ है एज पर 2019 रिपोर्ट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है, डी, कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। की फाइंडिंग्स आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है और इसके क्या क्या कितना बढ़ा है, कितना एरिया है, इसके अंदर इंडिया का कितना पार्ट है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ स्टडी in detail this state of forest report 2019. Okay friends, so I am not discussing in detail because it is a very large topic and we will discuss this in separate video. Okay fine friends. So long question क्या, between this station India's second premium Tejas train, तेजस ट्रेन आई थिंक मस्ट भी आपने सुना होगा। तो सेकेंड ट्रेन जो चलाई गई है प्रीमियम ट्रेन, वो किस किस स्टेशन के बीच में चलाई जा रही है, फ्रॉम विच स्टेशन टू विच स्टेशन दिस तेजस ट्रेन इज विच ऑपरेटेड। सो इसका आंसर क्या है, अहमदाबाद टू मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। और पहली ट्रेन कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। पहला किसके से चला गया था, सो पहला क्या चला गया था, दिल्ली से मुंबई के बीच में, ठीक है, सॉरी दिल्ली से लखनऊ के बीच में चला गया था। फर्स्ट ट्रेन जो चलाई गई थी वो लखनऊ से दिल्ली के रूट पे चलाई गई थी, ये भी आप देख लीजिएगा, अक्टूबर 2019 में, ठीक है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ से दिल्ली के बीच में पहली तेजस ट्रेन चलाई गई थी। तेजस ट्रेन की वो क्या है कि ये रेलवे नहीं मेंटेन करता है, ये IRCTC के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट नॉट प्राइवेट बट या फर्स्ट कॉरपोरेट ट्रेन कह सकते हैं आप, जो कि IRCTC के द्वारा, मैंने IRCTC एक कॉरपोरेशन है, नॉट मेंटेन बाय रेलवे। ओके, तो ये IRCTC के द्वारा मैनेज की जाती हैं दोनों ट्रेनें, तेजस ट्रेनें जो भी चल रही हैं, 2 ट्रेनें अभी तक चलाई गई हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, what is the amount of an annual pension has been announced by UP government to ट्रिपल तलाक victims। ट्रिपल तलाक की जो विक्टिम है उनको कितनी पेंशन UP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो इसका आंसर क्या है, 6,000 रुपये, ठीक है। 6,000 रुपये अनाउंस किया है UP गवर्नमेंट ने, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, पर एनम विक्टिम्स ऑफ ट्रिपल तलाक।
ठीक है। अभी ट्रिपल तलाक को वो किया गया है ना, रिपील किया गया है, उसको हटाया गया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ट्रिपल तलाक अभी क्रिमिनल ऑफेंस है, ये अभी फिलहाल इसको एक लॉ बनाकर, ट्रिपल तलाक कानून बनाकर इसको ख़त्म कर दिया गया है इंडिया से। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नाउ कमिंग टू 18th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस? इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस मार्च 2020 में कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान। तो इसका आंसर हो जाता है ए, इंडिया। जो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इसका आप देख लीजिए थीम क्या है, बेसिक साइंस पर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 19वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन बिग स्टेट्स कैटेगरी। किस उसने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है? जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये भी आप देख लीजिएगा कि कौन लॉन्च करता है, कौन रिलीज़ करता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये इट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। सो इसका है तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे तमिलनाडु ने टॉप किया है, ठीक है। यहाँ पर और आप देख लीजिएगा कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसी दिन अटल बिहारी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है। तो इस दिन गुड गवर्नेंस डे गवर्नमेंट डिक्लेयर किए मनाने के लिए। सो नीति आयोग इसको लॉन्च करता है, ठीक है। ओके, नाउ 20वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निर्देशालय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निर्देशालय, किसके अंतर्गत काम करता है? वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री और विच डिपार्टमेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत न्यूज़ में आता है कि उसने उस पर छापा मारा, उसमें छापा मारा, इसको पकड़ा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑप्शन है होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पीएमओ, सीबीआई। तो किसके अंदर काम करेगा? ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट इज़ वेरी important and very factual and very knowledgeable question, okay। so इसका जो आंसर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। okay friends, so we have completed today the 20 question discussion. Although it has been a very long video, I'll try to short the discussion video within 20 minutes and 5-15 minutes in next from coming videos. This was the first video, that's why it took a lot of time to explain the initiative and other things. So okay friends, I hope it will be useful for you to understand. After, please don't watch before attempting this question. Please first attempt question without seeing solution and discussion on YouTube. First attempt it by yourself, please. It's my humble request and earnest request to all the serious aspirants. If you want to take benefit from this initiative, please attempt without seeing solution in YouTube discussion, and please write down on paper your options, then match with the solution, then try to have an explanation about those questions on this discussion on YouTube, okay। So today we have completed the first discussion. Please give your suggestion if any, and please do study, be healthy and keep studying, okay। See you again very soon. So thank you.